Thank you to our guests and to Ms. Shirley Parikh for that serene invocation. Now I would like to invite the festival director, Mr. Uma Shankar Yadav, to address the crowd with a warm welcome. Thank you, Surbhi and Shirley ji for Saraswati Vandana. And good morning, everyone. सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, अपना रास्ता खुद बनाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। अज्ञात। Good morning and very warm welcome to all of you in the 10th edition of Ahmedabad International Literature Festival. This 10 years of journey has been very long, inspiring and impactful. In fact, I would like to give credit to Raghuveer Chaudhary sir. जब हमने 10 साल पहले शुरू किया था, तो he was sitting here. अब मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि सर हमारे 25वें एडिशन में भी हमें ब्लेसिंग्स देने के आए और आप सब लोग ब्लेसिंग्स देते रहिए कि सर स्वस्थ रहें, ज्ञानपीठ अवार्डी हैं और देश के लिए धरोहर हैं, गुजरात के लिए धरोहर हैं। हमें इन धरोहर का पूरा ध्यान रखना है। साहित्य इनकी वजह से जिंदा है और आप सब लोगों की वजह से जिंदा है। ओवर द पास्ट डिकेड, AILF has grown from a very passionate initiative. It was a very passionate initiative into a vibrant platform connecting thousands of literature, art and cinema enthusiasts, writers, artists, thinkers across the globe. This journey would not have been possible without our incredible team of mentors, volunteers, speakers, supporters and the audience, that is you. Lovely audience, thank you so much for joining me on this Saturday morning. Young audience, thank you. And we are profoundly grateful for all your love and support to us in this long 10 years of journey. Today, we come together to celebrate the power of storytelling in all its formats. Literature and cinema, from the written page to the stage, from books to the big screen, that will be available immediately after this inauguration program. You'll be watching a trailer of our film. AILF has always been committed to bringing stories to life and connecting audiences. Now, this is something serious and we need to be grateful for what we have been getting from people, from the mentors, from everybody. I'll take a moment and I would request all of you to take 10 seconds to pay our humble tribute to late Dr. S.K. Nanda sir. He was an IAS officer of repute, very respected name in Indian bureaucracy and Gujarat. He is no more with us. His vision and guidance have been instrumental in the growth of Ahmedabad International Literature Festival. His contributions to literature and culture continue to inspire us and we owe him to the greatest gratitude. I just put my thoughts for 10 seconds to Dr. S.K. Nanda sir. Thank you. We are also extremely thankful to our partners and sponsors whose support has made this festival possible. Gujarat Tourism has joined us from the very beginning. They have been our partner from the 2016 onwards when we started this festival. This festival is also powered by my own company, Icon Barcode Solutions Private Limited. The team, the money, the might, everything is behind this festival from my team. This is Kamlendra, Parth, Shivam, Subhas. They have been working tirelessly from last 6 months for making this festival come to this stage. Gujarat Mineral Development Corporation Limited, they have been our supporter, silver sponsor from the long back. We are joined by celebrity costume designer, Miss Pia Benegal. Please give a huge round of applause to Miss Pia. Welcome, ma'am. We are also grateful to Calorex Group.
They are the school, big school in Ahmedabad. They are the school partners. You can find some of the children here from the Calorex group. Thank you, Calorex group, from joining us from last 2 years. We are joined by this year Sahitya Manch. This is a huge contribution from Sahitya Manch, led by Vijan Rawal ji, Mr. Vijan Rawal. He has done wonderful work for bringing this festival to what it is now. He has joined us. We wish him all the very best for his Sahitya Manch. Renaissance by Marriott, they are our hospitality partner. They are giving us hotel services, and we are grateful to Mr. Rohit Bajpayee and his team. They have been more than generous in helping us out. Serene Films, which is our cinema partner, they will be showing their films here, and Serene Publishers and Distributors, they are our publishing partner. This festival is run by Icon Education Foundation, which is a charitable trust, and it has been doing it from last 10 years. And the audience, the beautiful audience, they have been huge support. Without you, we shall never have been able to do it. And I want to thank everybody, those who have joined us across the globe. We have watchers, we have audience, we have viewers in all over the world. When we see our data, we see some people are watching from African countries, some people are watching from American countries. So thank you so much from wherever you have joined, whether you are in India, you are in the auditorium, or you are in the world. Thank you. Your trust and encouragement have allowed us to create a festival. This festival is very unique. It has got its own character, inclusivity and enriching in every aspect. We are also, अब आप लोगों को हम एक बहुत बढ़िया बात बताने वाले हैं. अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल की हिस्ट्री में 10 साल की हिस्ट्री में हमने पहले कभी भी किसी फिल्म का ट्रेलर नहीं लॉन्च किया है. इस प्रोग्राम के उद्घाटन के तुरंत बाद हम सीरीन फिल्म्स की फिल्म ड्रॉप आउट का ट्रेलर लॉन्च करेंगे. उनकी पूरी टीम है हमारे पास, एक्टर्स, लीड एक्टर्स, डायरेक्टर और एडिटर, म्यूजिक, सिंगर, लिरिसिस्ट, एवरीबडी इज हियर. यू विल लव देम. सो बिल्कुल आप संभल के बैठिएगा. आफ्टर दिस प्रोग्राम देयर इज अ ट्रेलर. हम जो कहना चाहते हैं वो कुछ और है. एंड दिस इज यूनिक. हम कह रहे हैं इंजीनियरिंग समझ ही नहीं आती. फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल. As we embark on this 10th edition, let us celebrate the enduring power of stories, creativity, and imagination. Your presence, support, and enthusiasm are what makes this AILF truly special. Thank you, and let's make AILF 2025 a memorable 2 days. We are going to start from now. Next 2 days should be a literary celebration. You will surely love it. And if you are not yet joined, you are anywhere in Ahmedabad or nearby, please do join us or join us live on Facebook page of umashankar.3950. ये हम बात अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे एक और अज्ञात बात के साथ. आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. ये हमारा सपनों का शहर है अहमदाबाद. दिस इज डेडिकेटेड टू अहमदाबाद. अहमदाबाद इज अमेजिंग ना. यस. सो सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर. सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर. सिटी ऑफ ड्रीम्स. चलने की जिद भी जरूरी है मंजिलों को पाने के लिए. सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर. चलने की जिद भी जरूरी है मंजिलों को पाने के लिए. तो हमारी मंजिल जारी है. हम आशा करते हैं आप सब लोगों की मंजिल भी जारी रहे और सुखद यात्रा रहे. थैंक यू सो मच. या I would now like to call upon stage Mr. Raghuveer Chaudhary to grace us with a few words about literature and this amazing festival that we're celebrating. have him here with us.
एक अकेला आदमी 10 साल तक इस प्रकार का बहुत बड़ा कार्यक्रम चला रहा है और वह भी अहमदाबाद में, ये बड़ी बात है। और भी श्याम पारेख आदि हमारे मित्रों ने बहुत बड़े पैमाने पर साहित्य समारोह किए हैं। तो फिर अहमदाबाद के बाहर भी वो गए। उमाशंकर जी ने अहमदाबाद के बाद और किसी शहर में किया है? बड़े लेवल पे नहीं किया, ऐसे छोटे ये जो है इसे बड़ा लेवल कहते हैं, तो बड़े लेवल पर नहीं किया, यहाँ करते हैं। अहमदाबाद के लिए तो इतनी बड़ी संख्या, ये बड़ी ही कही जाएगी। उमाशंकर जी जोशी हमारे बड़े साहित्यकार, वो कहते थे कि अहमदाबाद में 50 मूर्ख हैं, 50 फूल्स हैं, वो किसी भी कार्यक्रम में उपस्थित रह सकते हैं। यहाँ तो ज़्यादा संख्या है। और बड़ी सुंदर जगह आपने पसंद की है, किसी ने मुफ्त में ही दी होगी। नहीं, मुफ्त में चाहिए तो कहिए, हम भी सिफारिश करेंगे। मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था साहित्य, और HK आर्ट्स कॉलेज में था तब मैंने एक नाटक का निर्देशन किया था। वो हमारी पुरानी रंगभूमि का वो नाटक था, वीणा वेली। तो उस नाटक में विद्यार्थी खुद गाते भी थे, और गाने के लिए पुरानी रंगभूमि का एक कलाकार, एक हारमोनियम वादक और गायक हमें मिल गया था, वो सिखाता था। और ये बड़ी बात होती है कि मंच पर अभिनय करने वाला ही खुद गाता हो और उसका गान प्रेक्षक तक पहुंचता हो। तो उसके कई शो हुए, और जो पैसा बचा उससे हमने वीणा वेली नाट्य स्पर्धा शुरू की। वो आज भी चलती है HK आर्ट्स कॉलेज में, और गांव के कॉलेज के छात्र आते हैं और अपने ढंग से जैसा भी कुछ हो वो करते हैं, लेकिन साहित्य का जो शब्द है वो उसे याद करते हैं। और मैं जो नाटक सिखाता था उसमें पहले तो कैसे खड़ा रहना है मंच पर, ये सिखाता था। फिर शब्द सही उच्चारण के साथ, फिर भाव के साथ, और जो रचना है वह प्रेक्षक तक पहुँचे, इसका प्रयत्न करता था। उमाशंकर जोशी का एक पद्य नाटक है मंथरा, वो खेला गया, उमाशंकर जी भी उपस्थित थे। तो उन्होंने कहा कि नाट्य क्षण व्यक्त हुआ है। नाट्य क्षण, नाटक का जो क्षण होता है वो पहुंचना चाहिए। और पद्य नाटक तो और भी मुश्किल होता है, छंद का उच्चारण सही हो और भावान्विति प्रेक्षक तक पहुँचे। तो नाटक के साथ साहित्य के अध्यापक के रूप में मेरा नाता रहा। और पुरानी रंगभूमि के जो नाटक है उनमें से कई मैंने पढ़े भी। पुरानी गुजराती रंगभूमि में संगीत का बड़ा महत्व था, और कई गीत उस समय के आज भी गाए जाते हैं। कुछ कार्यक्रम पुरानी रंगभूमि के गीतों के होते हैं, और लोगों तक ये गीत पहुँचे थे। आज फिल्मों में जो गाने आते हैं उसमें तो उछल कूद का महत्व ज़्यादा होता है, एक दूसरे के साथ जो कुश्ती करते हैं वो होता है। तो ये नहीं, लेकिन भाव प्रकट हो। और कुछ गीत जो शास्त्रीय संगीत का भी आश्रय लेकर गाए गए हैं वो भी अमर हो गए हैं। तो संगीत का जो संबंध था पुरानी गुजराती रंगभूमि में वो महत्वपूर्ण था। और गुजरात के जो पारसी लोग, इन्होंने सारे देश में पारसी रंगभूमि के श्री गणेश किए थे और पहुँचे थे। मराठी रंगभूमि बड़ी समृद्ध है आर्थिक रूप में भी, और वे रूपांतर करके बचते हैं। और बम्बई में INT जो है
वो भी अच्छा काम करती है। लेकिन नई बात यह है कि जो 10-15 लड़के मिलकर छोटे छोटे नाट्य प्रयोग करते हैं, एक नई बात है। अहमदाबाद में इस प्रकार का कामकाज हो रहा है और इस कार्यक्रम के बाद, उमाशंकर जी के इस प्रयत्न के बाद, ये जो नए लोग काम करते हैं उनको प्रोत्साहन भी मिलेगा। और उमाशंकर जी फेस्टिवल के अलावा ऐसा भी कुछ कार्यक्रम करें, नए लोग जो काम करते हैं उनको प्रस्तुत करने का। तो आप लोग वो फिल्म बनाना तो आसान है, लेकिन ये जो नए लड़के खुद तैयार करते हैं, क्रिएट करते हैं, वो नहीं फिर अच्छी होगी तो वो भी अच्छी बात है। यहाँ कुछ हीरो हीरोइन भी आए हैं वो आपने जब हीरो और हीरोइन को का स्वागत ही ऐसे ही किया, तो उनके नाम क्या है? नहीं आप बताइए। हाँ हाँ, वाह बहुत अच्छा। हाँ, अच्छी बात है। इतने धन्यवाद, आप इतने बड़े कलाकार आए, ये खुशी की बात है और हम आपको प्रणाम करते हैं, अभिवादन भी करते हैं। तो मुझे हाँ, वो अधिकारी हैं, वो भी बड़े हैं ना? नहीं नहीं, ये वो तो हैं ही, ये आपके पास बैठे। हाँ हाँ, तो अब तो कोविड होने वाला नहीं है। और वो महिला जी भी पधारी, अच्छी बात है। मुझे तो केवल 5 मिनट के लिए कहा था और 7 मिनट हो गए हैं, तो आप सबका स्वागत करके बधाई के साथ वंदन। Now I would like to invite Shri Manoj Agarwal sir to kindly come and grace us with a few words. Thank you. नमस्कार मित्रों, अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल के 10वें संस्करण में मैं आप सबका फिर से, उमाशंकर जी पहले स्वागत कर चुके हैं, मैं फिर से स्वागत करता हूँ। मेरे से पहले माननीय श्री रघुवीर चौधरी जी ने बहुत ही शॉर्ट में, ब्रीफ में, लेकिन बहुत ही उपयोगी और ऐसी बातें कही जो मुझे लगता है कि हम सबको जो यहाँ उपस्थित हैं या जिसके पास तक भी पहुँचेंगी उनको लंबे समय तक याद रहेंगी। वो बहुत साहित्य की ऊंचाइयों तक पहुँचे। भारत सरकार ने ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया, बहुत बड़ी बात। उसके लिए मैं उनको बहुत मैं मुबारकबाद और उनको शुभ बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और उनका आशीर्वाद गुजरात और भारतवर्ष के साहित्य क्षेत्र को सदैव मिलता रहे, ऐसी भी कामना करता हूँ। स्टेज पे साथ में श्री मजेठिया जी हैं, मैडम पिया बेनेगल हैं। तो ये सभी जो एक क्रिएटिविटी होती है, उमाशंकर यादव जी के बारे में तो हम सब जान ही चुके हैं। साहित्य और फिल्म जो इस वर्ष का फेस्टिवल का थीम है, इसके बारे में ये जो हस्तियां, महान हस्तियां हैं,
ये आने वाले 2 दिन, आज और कल, आप सबको सतत उसकी जानकारी देंगे, अलग अलग सेशन में भाग लेंगे। हम लोग अगर बात करें साहित्य और फिल्मों की, तो हम जानते हैं अच्छी तरह सब कि हजारों वर्ष से किसी भी समाज में जहाँ थोड़े से भी लोग इकट्ठे होते हैं, और ख़ास तौर से अपना भारत का समाज जिसका जो सभ्यता जो हजारों वर्ष पुरानी है, उसके अंदर साहित्य, क्योंकि फिल्में बाद में आईं, फिल्में तब आईं जब अनेक आविष्कार इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हुए, पर साहित्य अपने देश का तो हजारों वर्ष पुराना है। दोनों जो फील्ड हैं उसमें क्या समानताएं हैं? स्टोरी टेलिंग है दोनों क्षेत्रों में, साहित्य में और फिल्मों में स्टोरी टेलिंग एक होती है। वो स्टोरी जो है फैक्ट, अगर साहित्य की बात करें फैक्ट, और फिल्मों में भी फैक्ट और फिक्शन दोनों हो सकती हैं। कोई मेन कैरेक्टर भी होते हैं जनरली, जिसके ऊपर वो जो लेखक है या फिल्मकार है उसने अपनी कृति उसके ऊपर बेस की होती है, उसके ऊपर बनाई होती है, उसको सेंट्रलाइज करता है वो, क्योंकि उसको भी लोगों को बताना है, लोगों को लुभाना है, लोगों को समझाना है। तो ये क्रिएटिविटी है। फिर थीम्स और सिंबॉलिज्म होते हैं कि इस साहित्य का क्या थीम रहेगा, क्या इसका सिंबॉलिज्म रहेगा समाज के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न किसी भी सफल साहित्यकार या फिल्मकार का ये रहता है कि वो वर्षों तक समाज के लोगों को याद रहे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनके दिमाग पर रहे, दिमाग के किसी कोने में रहे, क्योंकि सब चीज़ें तो दिमाग के एकदम आगे नहीं रह सकती, स्वाभाविक है, लेकिन दिमाग के किसी कोने में वो चीज़ें रहती हैं। अलग अलग बातें अगर हम बोलें साहित्य और फिल्मों में क्या अलग है, तो उसमें लिटरेचर में रिटन वर्ड्स का बहुत महत्व है, जबकि फिल्मों में विजुअल और ऑडिटरी जो एलिमेंट्स हैं उनका बहुत महत्व है। एक साहित्यकार शब्दों को किस तरह से बुनता है, किस तरह से वो माननीय रघुवीर जी हमें बता सकेंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी लिखा है, इतना उन्होंने शब्दों को कैसे बुना, उसकी पेस क्या रहती है। क्योंकि कई बार वो पेस धीरे हमको लगेगी कि ये बहुत धीरे स्टोरी चल रही है या बहुत तेज़ चल रही है, सबकी अपनी अपनी पसंद भी होती है। मुझे लगेगा ये बहुत धीरे स्टोरी चल रही है, किसी को लगेगा ये स्टोरी बहुत तेज़ चल रही है, थोड़ी धीरे चलाए। और यही चीज़ उन दोनों को अलग करती है। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा बहुत टूक में, शॉर्ट में, जो हमारे पुराने समय के साहित्य हैं, जब फिल्मों का कोई आविष्कार होने का कोई संभावना नहीं थी, उससे शुरुआत करें तो वेद 3500 से 4500 साल पुराने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो हैं सब अलग अलग समय में तो लिखे गए, लेकिन 3-3.5 साल पहले या उससे भी ज़्यादा समय, और आज भी उनका रेलेवेंस इतना ही है। तो साहित्य का रेलेवेंस हम इससे देख सकते हैं। इसके अलावा रामायण, महाभारत, फिलोसफिकल लिटरेचर में उपनिषद, भगवत गीता, पंचतंत्र की कथाओं को कौन नहीं जानता। तो इस तरह से पुराने समय के जो लेखक हैं इनके बारे में हम जानते हैं। आज भी भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ की जनसंख्या 145 करोड़ के आसपास है,
बहुत विशाल संख्या में हमारे पास लेखक हैं, उनको आगे लाने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए इस तरह के लिटरेचर फेस्टिवल, इस तरह के फिल्म फेस्टिवल, जिन्हें फिल्म बनाने का शौक़ है, उनको हमको आगे लाना है। मैं श्री रघुवीर चौधरी साहब का इस बात से सहमति प्रकट करूंगा कि इतने लोग आए हैं, ये भी यहाँ अहमदाबाद के लिए काफ़ी बड़ी संख्या कहलाएगी, क्योंकि मुझे याद है कि पिछली बार इससे आधी, शुरुआत के सेशन में इससे आधी संख्या थी। तो ये संख्या में शायद आप लोग जैसे आपके नाम वगैरह आए हैं, तो ये संख्या बड़ी है। तो आप सबका यहाँ आने के लिए फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ आए, बड़ी बात है। और चूँकि मैं भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का एक भाग हूँ, ज़्यादा भागदौड़ उमा जी करते हैं, लेकिन सतत इनके साथ मेरा संपर्क रहता है। तो कुछ ऐसे लिटरेरी और फिल्म फेस्टिवल होते हैं जो पूरे विश्व में फिर प्रसिद्ध हो जाते हैं। उसका एक कारण शायद उनका लोकेशन भी है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म लिटरेचर एंड फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो पूरे विश्व के लोग उस फेस्टिवल के लिए उतर पड़ते हैं। उसका एक कारण है जयपुर का एक हिस्टोरिक और हेरिटेज सिटी होना। हमको भी हेरिटेज सिटी की तरह तो डिक्लेयर कर दिया गया है, पर वो कितना अभी हमको उसको आगे ले जाना है वो चल रहा है। यहाँ पर जो साहित्य है उसमें छोटी कहानियाँ, छोटे नाटक, बड़े उसमें नॉवल वगैरह कृतियाँ, वो लिखने के लिए हमें शायद शुरू से ही बच्चों का जो करिकुलम होता है, उस करिकुलम में कहीं ये चीज़ें जो हैं, जो महान लेखक हैं उनके बारे में बताना, महान कृतियों के बारे में उनको बताना, जिससे कि वो भी इस तरफ प्रेरित हों और आगे कुछ ना कुछ वो लिखने का प्रयत्न करें, तो अपना भी साहित्य जो है आगे बढ़ेगा। इसी तरह फिल्म मेकिंग की तो आज कोई लिमिट नहीं है। OTT के ऊपर छोटी बड़ी हजारों जो फिल्में ही कहा जाएगा उनको, सिर्फ फीचर फिल्म की बात नहीं है, जो बड़े पर्दे पर दिखाई जाती है उसी की बात नहीं है। आज मैं 5 मिनट की भी एक रील बना के डालता हूँ तो वो एक फिल्म है, और उसके लिए हमारे को बहुत कोई खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो क्रिएटिविटी की अपॉर्चुनिटीज़ हमारा जो अभी युवा समाज है या अन्य समाज जो इस चीज़ में लगा हुआ, उनके पास अनेक गुने बढ़ गई हैं। और मैं यही एक इच्छा प्रकट करता हूँ, ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ और सबको कहना चाहूँगा कि इस तरह का जो एक माहौल बना है, तो सुंदर, स्वच्छ और अच्छी कृतियाँ, फीचर फिल्म हो, डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो, प्रेरणा रूपी फिल्म हो, या OTT के ऊपर, या ये जो अब छोटे छोटे जैसे YouTube के ऊपर चले हैं, टिकटॉक के ऊपर चले हैं, उस तरह की भी कृतियाँ जो हैं वो बनती रहें और उससे समाज सीखता रहे। अंत में सिर्फ ये 1-2 लाइनें कह के कि साहित्य और फिल्मों में जो होता है वो प्रतिबिंब हैं एक दूसरे के, तो वो प्रतिबिंब जो हैं वो हमेशा समाज से इधर आते हैं और यहाँ से समाज में जाते हैं। तो वो ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है और अहमदाबाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल को आने वाले वर्षों में आगे ले जाना है। उस सब के लिए आपके साथ सहकार की ज़रूरत पड़ेगी। ये कहते हुए फिर से
आयोजकों का खूब खूब आभार करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। खूब खूब आभार। Sir, thank you so much. We are really grateful for all your help during this process, and he has been a great help in organizing this festival. I just want to, sir, one clarification. Around 26 countries, students and speakers are from around 26 countries sitting here. And they are the speakers from Brazil, from Uganda, Malawi, Sierra Leone, Bangladesh, Myanmar, and Cambodia. So I would like to thank this ICCR community, that is Indian Council for Cultural Relations. Can you please get up? The students of ICCR, the scholars of ICCR. Yes. उमा जी, सॉरी, आप लोगों का वर्णन करना रह गया। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। And yes, and that's why I'm just specially welcoming them and appreciate your presence here. And where is Miss Fiona? She has been instrumental in organizing. She is the part of organizing committee, in fact. And 25 countries, will you believe, are joining this festival as of now, sitting with us. They will be expressing their views, and they are performing. They are doing the fusion of Madagascar, Malagasy, Hindi, English. So you'll have wonderful things. And the most important thing is we have been joined by Special Commissioner of Delhi Police, who is looking after traffic, Sri Ajay Chaudhary Sahab, IPS officer of 1996 batch. Please give him a huge round of applause. Sir, I welcome you here on the stage. Thank you for joining us from your busy schedule, sir. You're most welcome. Thank you so much. Yeah. So we'll continue with the program, and ICCR, Subhash Singh ji, ICCR Delhi, thank you so much for helping us out, for being our cultural partner. We love you. I would like to call upon stage Miss Pia Benegal to say some few words about literature and our festival. Good morning, everybody. I don't know if it's morning any longer, but yes. So it's such a pleasure to be here this morning in Ahmedabad International Literature Festival, surrounded by such wonderful people from so many different countries. And this is really very exciting, energizing, and with these wonderful people on this podium who have already spoken before me, which is really very thrilling. And I do want to begin by extending my heartfelt thanks to wonderful Mr. Uma Shankar Yadav, who has invited me, and his dedicated team for creating this wonderful space for literature and cinema. For me, storytelling has always been at the heart of everything, whether it's through words or visuals, design or performance. My own journey, growing up around cinema and working within it, has taught me that every art form at its core seeks at doing the same thing: to make us feel, to make us think, and sometimes to help us see ourselves a little
more clearly. Everything that we see, be it theater, art, sculpture, maybe a piece of woven fabric, architecture, a temple, a mosque, everything, life, nature, makes you react emotionally, makes you feel an animal. Going anywhere, you look at the sky, it makes you feel. There's an essence, a connection. So cinema does exactly that. And that's part of storytelling every day. So we experience storytelling in different ways. It's not always cinema or theater. Storytelling is in our life every day in different ways. Storytelling between friends, storytelling between within family get-together. Even when there's a little minor squabble between siblings, there is a storytelling there. It's storytelling in so many ways which gets written into the script. So everything's taken in different ways. So a writer takes it from life and brings it down to the written word. And that's where we take it and then translate into the canvas of cinema, or you put it into theater. So that's what we are all trying to do in the canvas of cinema, OTT, and all the people out there who are also working in theater, film, short films, documentary, and people like that. I'm also part of the same world as you all. And we are always trying to get people to come out of the theater and say, Paisa Vasool, because you say that only when you sense, feel, react, cry, laugh. And even if you're not laughing loudly, but you're laughing within and you're learning something, or you're not crying buckets, but you're weeping deep down, you're learning something. So that's a reaction, you know. Humor doesn't have to be a guffaw. Humor can be a deep black humor, and you're learning from that. Sadness doesn't have to be tears. A sadness makes you react to what is happening around you and makes you want to correct what is happening around you. So that's what the story or the cinema, the play, the song, lyrics make you do. So that's what we are all trying to do. People are trying to work to bring that change in your lives, our lives, and I hope we are on the right track. That's all. I hope this wonderful festival is going to bring about lots of interesting conversation, and I wish Uma Shankar lots of good luck and wonderful future, and let's hope he does more and more and bigger and better. So I wish you all a wonderful 2 days here. Thank you. Thank you so much, ma'am, for that lovely speech. Now I'd like to invite on stage Mr. J.D. Majeetia to grace us with a few words. Respected people sitting on the dais and my friends in the audience. I was not supposed to speak, I was not sure, but when I heard Raghuveer Chaudhary Sahab beginning very well, उन्होंने थिएटर की बात करी, तो because I am from theatre and I would like to say certain things. उनके बाद महेश जी ने भी बात करी कि ऑडिटोरियम में आज तो कुछ लोग आज ज़्यादा है. I always love this and appreciate this positive approach. हम सब ने एक theory सीखी है, the glass is half full.
rather than looking at glasses half empty. So, welcome friends from different countries and would like to say something which connects and resonates with everybody. The times were different earlier. टेक्नोलॉजी नहीं थी, सिनेमा, टीवी, OTT, सोशल मीडिया एंड रील्स कुछ नहीं था. बट देयर वाज अ पीस ऑफ गुड राइटिंग दैट ट्रैवल्ड. अ गुड राइटिंग, अ गुड लिटरेचर इज ऑलमोस्ट इमॉर्टल. एक नाम दूंगा, द वर्ल्ड कैन कनेक्ट, एंड दैट्स लेजेंडरी शेक्सपियर. A good piece of writing interpreted by so many generations and not in just one country, world over. So whether you have 5 people, you have one person taking a right clue and putting in a right way on paper can travel to the entire world in today's time. But how to create that one word or one sentence or one piece of good writing is, you have to be very true. You have to be very honest to yourself and express yourself. While expressing, just try and make it, express it better with some good words, and those good words will come from your learning, from your observation, from your reading. And reading का मतलब क्या है? The written word, which is literature. So literature is so important. It is root of every creation today. आपको फिल्म बनानी है, आपको स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी. आपको टीवी सीरियल बनानी है, आपको स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी. आपको जो कुछ OTT जो कुछ बनाना है, आपको स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी. और स्क्रिप्ट आती है रिटन वर्ड से, और वो आता है लिटरेचर से. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू. इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और एक बात और बताना चाहूँगा. आज ऐसा दौर चल रहा है कि अगर आपका काम, इफ योर वर्क इज नॉट सक्सेसफुल टुडे, डू नॉट वरी. इफ देयर आर नो रिस्पॉन्सेज टुडे, डू नॉट वरी. इट विल ग्रो. अ गुड वर्क टुडे विल रीच इट्स राइट recipients in its actual time. And I'm not just saying for the sake of saying. I do not know how many of you have watched Sarabhai vs. Sarabhai, one of our most successful program. One of the most, it's not me, but because you all know and we have received and you read at multiple places, that it is one of the most successful comedy of India. Okay? एक बार विकिपीडिया ने या IMDb ने एक लिस्ट निकाला था 2 साल पहले, तो इंडिया में सबसे चलने वाली 10 टॉप कॉमेडीज, इंटरनेशनल कॉमेडीज भी थी उसमें साराभाई नंबर 4 पे और खिचड़ी नंबर 6 पे था. तो मैं आपको ये बात बताना इसलिए चाहता हूँ कि आप में से काफ़ी लोग लिखेंगे, काफ़ी लोग कुछ इस बातों को दोहराएंगे, आगे बढ़ाएंगे. साराभाई वर्सेस साराभाई, इट्स वंडरफुल पीस ऑफ राइटिंग. आतिश कापड़िया मेरे मित्र हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर है, माय सोल ब्रदर. उन्होंने इतना अच्छा लिखा था, तो पहली बार टीवी पे उनकी क्रेडिट नहीं आई थी. अब सोचिए, जिस आदमी ने साराभाई से साराभाई क्रिएट किया, उसके क्रेडिट नहीं थी. हमारे देश में राइटरों को उतनी प्राधान्यता नहीं दी जाती है, पर डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, ऐसा बहुत बार होगा. पर आज देखिए साराभाई वैसे साराभाई कहाँ है. जब 2004 में आई थी तो पहली बार वो सक्सेसफुल नहीं हुई थी, बिकॉज वीकली थी. इट डिड नॉट डू वंडर्स, उल्टा बंद हो गया था कुछ एपिसोड बाद. पर उसको जब बार बार समय के बाद वापस यूट्यूब और वापस प्लेटफॉर्म पे फिर दोहराया गया, दिखाया गया, तो वो कल्ट हो गया. तो ऐसा बहुत बार होगा. शेक्सपियर साहब का काम सिर्फ हमारे देश में नहीं, वर्ल्ड ओवर कितनी कंट्रीज में गया है. तो एक अच्छा काम अपना रास्ता पानी की तरह ढूंढ लेगा.
आपको पेशेंस रखना है, आपको विश्वास रखना है, आपको लिखते रहना है। तो लिटरेचर की बात थी तो मुझे लगा हमारा करियर थिएटर से शुरू हुआ है और यहाँ तक आए हैं क्योंकि अच्छे राइटिंग ने हमें सपोर्ट किया है। जो कुछ हूँ वो एक अच्छे राइटिंग की वजह से हूँ, लिटरेचर की वजह से। तो मुझे पहले पता नहीं था कि मुझे बोलना है, और मुझे जब पूछा तो मुझे बोला क्यों बोलना है, तो मुझे लगा नहीं, जब थिएटर की बात निकली थी और इतने लोग मैंने देखा तो मिला जितने भी लोग हैं, इवन इफ आई कैन इंस्पायर 1 पर्सन, मेरा यहाँ आना सार्थक होगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. It was lovely listening to the insider information that we don't often get to hear, about the world of television. But now, please join me in welcoming Special Commissioner Delhi Police, Shri Ajay Agarwal, sir, Ajay Chaudhary, sir, to grace us with a few words. पहले थोड़ा सा एक नाम में करेक्शन कर देता हूँ। मनोज अग्रवाल सर बैठे हैं और तो अग्रवाल और चौधरी मिक्स हो गए। आई एम अजय चौधरी, आई एम 96 बैच IPS वर्किंग इन दिल्ली पुलिस। थैंक यू सो मच। तो सुकून दिल के लिए, टू सेटिस्फाई माई हार्ट, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूँ, टू सेटिस्फाई माई हार्ट आई मस्ट मेक सम एफर्ट। मिले नज़र उनसे तो फिर उन्हें सलाम करूं। मेरे दोस्त हीरा लाल जी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ IAS अधिकारी, जिन्होंने मुझे अहमदाबाद इंटरनेशनल लिट फेस्ट से इंट्रोड्यूस कराया, और मंच पर बहुत देश की बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हैं। रघुवीर चौधरी साहब बैठे हैं, सौभाग्य है हमारा। JD मजेठिया साहब को हमने सुना, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, एक बहुत बड़ा देश का नाम, और जिस तरह से आपने उनके काम को सराहा। पिया बेनेगल जी बैठी हैं। तो जैसे ही मैंने आपका नाम सुना तो एक मन में बात आई कि शायद बेनेगल साहब से कोई कनेक्ट होगा। मैं सोच ही रहा था कि उमाशंकर भाई ने कहा कि श्याम बेनेगल जी की बेटी हैं आप। व्हाट ए सेमिनल कंट्रीब्यूशन टू दिस कंट्री सिनेमा एंड आर्ट एंड कल्चर। कितना बड़ा नाम, ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप अहमदाबाद में आप से मिलने का मौका मिला है। तो जैसा मैंने कहा कि रघुवीर चौधरी साहब बैठे हैं, मजीठिया साहब बैठे हैं, हिंदुस्तान के बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर मनोज अग्रवाल साहब बैठे हैं, पिया बेनेगल जी बैठी हैं, हीरा लाल जी हैं, और भी इस सभागार में बहुत बड़े बड़े लोग होंगे जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। और ये उमाशंकर जी की जो कोशिश है, जिसने हम सब लोगों को, यंगस्टर्स को, बच्चों को, नौजवानों को, इतने बड़े लेखकों को, कलाकारों को एक मंच पर इकट्ठा किया, मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो वो शेर बीच में अधूरा रह गया, शेर पूरा नहीं हो पाया कि सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूँ, मिले नज़र उनसे तो फिर उन्हें सलाम करूँ, मुझे तो होश नहीं है, आप मशवरा दीजिए कहाँ से छेड़ूँ फसाना, कहाँ तमाम करूँ। तो इतनी बड़ी कोशिश, एक लिट फेस्ट को ऑर्गेनाइज करना और उसमें इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स को रोप इन करना, लेकर आना, यूथ के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट करना कि कितनी ज़रूरत है साहित्य को ज़िंदा रखने की। इस कोशिश के पीछे एक बहुत बड़ी टीम लगती है, एक बहुत बड़ा जज्बा, कमिटमेंट और डेडिकेशन, और जो इतने वर्षों से उमाशंकर जी कर रहे हैं उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। मजेठिया साहब ने बहुत सारे कितनी अच्छी बातें कहीं, कितनी प्यारी बातें कहीं, और उन्होंने जो एक साहित्यकार का, एक कलाकार का जो दर्द है वो भी अपनी बातों में बयान किया। लेकिन बहुत अच्छी मोटिवेटिंग बात ये थी, उन्होंने कही कि निराश नहीं होना चाहिए, वन शुड नॉट गेट डिसअपॉइंटेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। उन्होंने उदाहरण दिया साराभाई वर्सेस साराभाई का। एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, आपने किताब पढ़ी होगी एल्केमिस्ट, कितने लोगों ने पढ़ी है या नाम सुना है इसका? जब पोलो कोएलो साहब ने ये किताब पुर्तगीज़ में पहला लिखा था, ओरिजिनल बुक वॉज रिटन इन पुर्तगीज़, ही इज़ ए ब्राज़ीलियन राइटर, एंड दिस बुक डिड नॉट सेल इवन मोर देन 2000 कॉपीज़।
Nobody recognized this book कि ये किताब क्या है, किसकी कोई वैल्यू है। और एक बार ट्रांसलेशन होने के बाद आज ये दुनिया की शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा, ऐसा ही कोई लोग होगा जहाँ इस किताब को कोट नहीं किया जाता, इसमें से कोई रेफरेंस चाहे फिल्मों में हो या कहीं हम इस्तेमाल नहीं करते। तो सबसे बड़ी बात यही है कि कभी निराश नहीं होना है, और ख़ास तौर से लेखन की दुनिया में बड़े चैलेंजेस हैं, जो हमारी पब्लिशिंग इंडस्ट्री की हालत है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बड़े से बड़े राइटर्स, आपने कितना लिखा है, यू विल नेवर कम टू नो कि आपकी कितनी किताबें बिकी हैं और कुछ आपको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। लिखते जाइए, और अब तो ये हालत पहुंच गई है कि बड़े बड़े पब्लिशर्स भी कह रहे हैं कि आप बताइए आप पहले कितना देंगे, 5000 किताबें आपको खुद ही खरीदनी पड़ेंगी, ये हालत है। ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, और मैं समझता हूँ शायद कोई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या कोई पॉलिसी आएगी टू प्रोटेक्ट द राइटर्स, टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, कि इस इंडस्ट्री में कम से कम हमारे देश में, बाकी देशों में है, इसमें ट्रांसपेरेंसी ज़रूर आनी चाहिए। और इस तरह के मुद्दे भी हम लोग इन फोरम्स पर जब तक नहीं उठाएंगे, अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक अन्याय होता रहेगा। एक बहुत बड़ी घटना आपको फिल्मी दुनिया के और उसके लोग हैं कि एक बहुत डिबेट हुई थी एक बार मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी में। रफ़ी साहब का कहना ये था कि अगर मैंने एक बार गाना गा दिया और उससे मैंने 10,000 रुपये ले लिए, तो अब उसके बाद इस गाने के साथ जो भी होता है मेरा कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन लता जी ने सजेस्ट किया कि इसका कॉपीराइट होना चाहिए और इसकी रॉयल्टी हमें फ्यूचर में भी, क्योंकि ये गाना आज नहीं, आपने एक बार गा दिया, बात खत्म हो गई, पैसे मिल गए, अच्छी बात है, लेकिन ये गाना तो 100 साल 200 साल चलेगा और लोग इससे पैसे कमाएंगे। तो बहुत बड़ी डिबेट चली, झगड़े भी हुए उनके आपस में, कई साल उन लोगों ने साथ साथ गाना नहीं गाया इसी बात को, छोटी सी बात को लेकर। तो बाद में जो एक बॉडी है वहाँ पे जावेद अख्तर साहब और ये सब लोग जुड़े हुए थे, उससे बहुत मुश्किल से, बहुत बड़ी लड़ाई के बाद कलाकारों के अधिकार सुरक्षित हुए। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारा जो ये मंच है, ये साहित्य, कला और उसके डिस्कशन, डिबेट और डिकंस्ट्रक्शन के लिए तो है ही, लेकिन लिटरेचर के लोग, आर्टिस्ट लोग, क्रिएटिव लोग जो चैलेंजेस फेस करते हैं, उनके ऊपर भी हम लोग विचार करें तो एक बहुत अच्छा आउटकम निकलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि मीडिया भी इन चीज़ों को कवर करता है। और बहुत बड़े बड़े लोग बैठे, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, एक बस ये कहूँगा कि मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि अंधकार है वहाँ जहाँ साहित्य नहीं है, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, जहाँ सूरज नहीं है, वेयर देयर इज़ नो सन देयर इज़ डार्कनेस, है देश वो मुर्दा जहाँ साहित्य नहीं है। तो हिंदुस्तान इतना समृद्ध परंपराओं का देश है। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू माई इंटरनेशनल गेस्ट, the fellows of the ICCR, as long as you are in this country, please do explore each and every corner of this country. You will find such vast richness, cultural diversity. No other country in the world can claim of the kind of diversity that we have, and we have to celebrate this diversity. We say that the taste of water in India changes every 4 kilometers, and every 16 kilometers our languages also change. There is so much variation. In Gujarati also you must be finding so many variations. In Hindi also, Bhojpuri Hindi, Maithili Hindi, Braj ki Hindi, the Hindi of Delhi and Haryana, so much variation you will find, and this must be explored by all the, I welcome all the international guests, and I also thank ICCR for enabling them to pursue their interests in this country. और ये कहते हुए, मैं आखिरी बात कहते हुए कि अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि भीगे हुए परों से, उमाशंकर जी आपके लिए और आपकी टीम के लिए है कि भीगे हुए परों से परवाज़ करके देख, अंजाम उसके हाथ है आगाज़ करके देख। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। Sir, thank you so much. It was a really pleasant surprise for all of us. Special Police Commissioner, Delhi Police, हम लोगों को शेर सुना रहे हैं। So, yeah, Surbhi will take over. Thank you so much. आप सब लोग कहीं भी मत जाइएगा। मैं अपने गेस्ट को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके बाद हमारी फिल्म का ट्रेलर दिखाया जाएगा, उसके बाद हम मीडिया से इंटरेक्शन करेंगे, फिर हमारे सेशन शुरू हो जाएंगे। सुरभि, प्लीज कम।
Yes, first of all, I would like to apologize for the mistake I made earlier. And, I think we can all agree that, sir, you are the true symbol of a person being a multifaceted person, doing everything all at once. But yes, so over the past decade, as our guests have mentioned, AILF has become much more than just a celebration of books and authors. It has grown into a space where words meet worlds, and today we will be witnessing the worlds of literature and cinema colliding. And this would not have been possible without our sponsors. So I would like to extend my warmest gratitude to our patron, Gujarat Tourism. We are powered by Icon Barcode Solutions Private Limited. Our silver sponsor is GMDC. Our school partner is Calorix Group. Our literary partner is Sahitya Manch. Hospitality partner Renaissance by Marriott. Cinema partner Serene Films. Publishing partner Serene Publishers. I would also like to thank the scholars of ICCR, and AILF is an initiative of Icon Education Foundation. Your trust and encouragement have allowed us to successfully build a community that comes together every year to appreciate and acknowledge literature. So a warm applause for all of you.